ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس مرکزی سرکار کا بنیادی مدعا و مقصد۔ وزیر اعظم نریندر مودی رشوت خور عناصر اور خاندانی سیاست کرنے والے عناصر سے عوام کو کیا خبردار۔ دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد مرکزی سرکار کی فلاح و بہبود کی اسکیموں سے جموں کشمیر میں ہو رہا ہے ہر فرد واحد مستفید۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو۔ جموں کشمیر میں بھاری تعداد میں سیاحوں کی آمد اس مرکزی انضام والے علاقے کی صورتحال میں آئی نمایاں بہتری کا واضح ثبوت۔ ایل جی منوج سنہا۔ آر پی ایم مدرا یوجنا کی بدولت چھوٹے کاروباریوں کے لیے قرضوں کو بنایا گیا آسان۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس مرکزی سرکار کا بنیادی مدعا و مقصد ہے اور اسی کے مؤثر عمل آوری کے ذریعے ہی حقیقی جمہوریت کے نظریے جو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا خواب تھا کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے آج تلنگانہ میں 11,355 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور بھومی پوجن کرنے کے بعد سکندر آباد پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سماج میں رشوت خور عناصر اور خاندانی سیاست کرنے والوں سے عوام کو خبردار کیا۔ قبل ازیں وزیر اعظم نے سکندر آباد ریلوے اسٹیشن سے سکندر آباد سے تیروپتی تک وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ریل گاڑی کو روانہ کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے طلباء اور لوکو پائلٹ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو، ثقافت کے وزیر جے کشن ریڈی اور تلنگانہ کے گورنر ڈاکٹر تامل سائی سندر راجن بھی موجود تھے۔ قانون انصاف اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے آج جموں یونیورسٹی میں ملکی آئین کے ڈوگری ترجمے کے پہلے ایڈیشن کو جاری کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے ترجمہ شدہ اس مسودے کو عام آدمی تک انصاف کی رسائی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص مادری زبان میں ہی قوانین کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ موصوف نے اس اہم کام کے لیے ترجمہ کاروں کو ضروری تعاون دینے کے لیے یونیورسٹی کی ستائش کی۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ نچلے درجے کی عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے 9,000 کروڑ روپے کی فراہمی اور ای کورٹس پروجیکٹ کے لیے 7,000 کروڑ روپے انصاف کی فراہمی کو اور زیادہ آسان اور ہر ایک کے لیے اس کی دستیابی یقینی بنانے میں اہم ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں التوا میں پڑے کیسوں کے نپٹارے میں ٹیکنالوجی کلیدی رول ادا کر سکتی ہے۔ اس موقع پر جموں و کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کوٹیشور سنگھ اور جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امیش رائے نے بھی اظہار خیال کیا۔ اس دوران کرن رجیجو نے آج راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی اور مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ درریاستہ مرکزی وزیر نے ادھمپور میں ایک جانکاری و میگا لیگل ایڈ کیمپ میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد جموں کشمیر میں مرکزی اسکیموں کے فوائد ہر فرد واحد تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی عمل اور عوامی فلاح و بہبود کے پروگراموں کی عمل آوری سے وہ کافی مطمئن ہیں۔ موصوف نے کہا کہ کشمیر کے میوہ جات اور دستکاریاں اپنے معیار اور انفرادیت کی بدولت عالمی سطح پر کافی مشہور ہیں اور مرکزی سرکار جموں کشمیر کو اقتصادی سرگرمیوں کا ایک محور بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ اس موقع پر جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس این کوٹیشور سنگھ نے بھی اظہار خیال کیا۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل مختلف پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کے لیے اہل امیدواروں سے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف سے منعقد کیے جانے والے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ CUET PG 2023 کی آن لائن درخواستیں طلب کرتی ہے۔ داخلے کے لیے امیدواروں کی اہلیت اور پروگرامز کے بارے میں تفاصیل کے لیے یونیورسٹی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر لاگ ان کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ گزشتہ برس تقریباً 1,88,00,000 سیاح جموں کشمیر کی سیر و تفریح کے لیے آئے جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ موصوف نے کہا کہ رواں برس صرف جنوری اور فروری مہینوں میں تقریباً 20 لاکھ سیاحوں نے اس مرکزی انتظام والے علاقے کا رخ کیا جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہاں صورتحال کس قدر بہتر ہوئی ہے۔ ایل جی نے آج جموں ڈویژن کے رامبن ضلع کے سناسر میں ٹیولپ گارڈن کا افتتاح کیا۔ اس ٹیولپ گارڈن میں کئی رنگوں کے 2.5 لاکھ سے زیادہ
ट्यूलिप हैं। इस मौके पर इज्तिमा बिलखुसूस पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों और मकामी लोगों से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि सरकार जम्मू सूबे में सियाहती सरगर्मी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि रस्लो रसाइल की सहूलत में बेहतरी की वजह से भी यहाँ सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। इस दौरान एलजी ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना भी किया। बाद में उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि ट्यूलिप गार्डन के इफ्तिताह से इस इलाके की तरफ सयाहों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी और मकामी इक्तिसादियात को तक़वियत मिलेगी। जहां टूरिज्म अथॉरिटीज बनी है कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है। हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म इस पर फैसला लेंगे। आज मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, खासतौर से पर्यटकों को और स्थानीय निवासियों को। पिछले साल हम लोगों ने तय किया था, इस साल सनासर का टूलिप गार्डन आप सबको समर्पित कर दिया गया है। आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और मुझे लगता है इससे लोकल इकॉनमी भी बढ़ेगी। दो तीन जो यहाँ की जरूरी आवश्यकताएं हैं उनके विषय में भी मैंने जब अपनी बात रखी तो उसमें कहा था, मैं समझता हूँ उससे रामबन और आसपास के इलाकों में काफी विकास हुआ। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने आज मुतल्लिका सीनियर अफसरान की एक मीटिंग के दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और G20 के तहत श्रीनगर को खूबसूरत बनाने के लिए जारी सरगर्मियों और दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका एजेंसी से कहा कि ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों पर जारी काम में सुरत लाने के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफा करने के अलावा ज्यादा शिफ्टों में काम किया जाए। उन्होंने उन जगहों जहां काम मुकम्मल किया गया है पर सफाई सुथराई यकीनी बनाने की भी मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी। इस दौरान मौसूफ ने उन सभी महकमों जिनकी खिदमात G20 समिट के लिए दरकार हैं से कहा कि वो अपने अमले की फहरिस्त मजीद कार्रवाई के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर को भेजें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जज जस्टिस सिंधु शर्मा जो कि कुपवाड़ा जिले की इंतजामी जज भी हैं, ने आज जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की शजरकारी मुहिम का आगाज करने के लिए कॉम्प्लेक्स के अहाते में देवदार का एक पौधा लगाया। उन्होंने नए तामीर हो रहे कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर जारी काम का मुआयना किया और मुतल्लिका एजेंसियों को बिना किसी ताखीर के प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाने के लिए कहा। जस्टिस ने ADR सेंटर का भी मुआयना किया और अदालती व इंतजामी अफसरान के साथ अलहदा मीटिंगें भी की। बाद में उन्होंने सब जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स हंदवाड़ा का भी दौरा किया। मुल्क में गुज़श्ते 24 घंटे में कोविड-19 के 6155 नए मामलों का पता चला है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत के दौरान कोविड के 2200 मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत ने कहा कि इस वक्त कोविड के 31,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं और सेहतियाबी की शरह सर-ए-दस्त 98.74% है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ समय से बालातर है। कोकरनाग में एक तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है और दूसरी तरफ हुकूमत का दावा भी है कि चुनाव के लिए हालात मौजून हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, ये सभी के लिए बाइस अचंबा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपोजिशन इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि इसकी बदौलत ही हम मुत्तहिद हो सकते हैं और मजहबी और मुनक़सिम सियासत करने वाले सियासतदानों का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वजह के मरकज में भी कई जमातें बैठकर यही सोच विचार कर रही हैं कि किस तरह इकट्ठे होकर ऐसे अनासर को शिकस्त दी जा सके। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सरकर्दा दीनी व सियासी शख्सियत मरहूम मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह की यौम विसाल पर उन्हें खराज पेश किया है। पार्टी के नायब सदर और दीगर लीडरों ने भी मरहूम को खराज पेश किया और उनकी दीनी खिदमात को याद किया। हजरत सुल्तानुल आरिफीन मखदूम साहिब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह की गिरदनवाह में आज बीजेपी के यूथ लीडर व मीडिया इंचार्ज मंसूर भट्ट ने कई रजाकारों और सिविल सोसाइटी मेंबरान के साथ एक सफाई मुहिम का एहतमाम किया। इस मौके पर बीजेपी मीडिया इंचार्ज ने कहा कि हम सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि नौजवानों को मनशियात की लत से दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस हर सतह मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने तकरीबन 3 दहाइयों तक जुर्रत के साथ मिलिटेंसी का मुकाबला किया और इस फोर्स के कई एहलकारों ने मुल्क की सालमियत और हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर की। जम्मू कश्मीर बीजेपी ST मोर्चा के सदर चौधरी रोशन हुसैन ने वादी में बिजली सप्लाई में माकूलियत लाने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वादी बिलखुसूस अनंतनाग जिले के छतरगुल और कुकरनाग इलाकों में बिजली के माकूल सप्लाई की वजह से अवाम इस मुकद्दस महीने के दौरान परेशानी का सामना कर रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन ने मरीजों को दस्तयाब तिबी सहूलियत का जायजा लेने के लिए आज जिला अस्पताल कुलगाम का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों में
और शोबों का मुआयना करके कामकाज का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने मरीजों और तीमारदारों के साथ बात की और अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात के बारे में उनसे दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से सफाई सुथराई और मरीजों की बेहतर से बेहतर तिबी निगहदाश्त यकीनी बनाने की ताकीद की। बाद में उन्होंने अस्पताल के अकब में बाजार का भी मुआयना किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मसाजिद, ज़ियारतगाहों, खानकाहों और बुक़जात में आज जंग बद्र के सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस हवाले से ज़ियारतगाह हज़रत सैयद जमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह जमालटा में भी एक मजलिस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वाज़ तबलीग के दौरान मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने शहदाई बद्र की अजमत को शानदार खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि इस मारिके में मुसलमानों की कुल तादाद 313 थी, लेकिन कुव्वत ईमान और शुजात की वजह से उन्होंने दीन इस्लाम के परचम को बुलंद बाला रखा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत के मुख्तलिफ गोशों की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्लाम की आबियारी के लिए बेशबहा कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने मरहूम मीरवाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह को भी उनके यौम विसाल पर खराज पेश किया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज सब्जियों की पनीरी तकसीम करने के तीसरे मरहले का इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि पनीरी साइंसी तरीकों पर लाल मंडी श्रीनगर के महकमे के हाईटेक पॉली हाउस किचन गार्डन्स में भी उगाई गई है। इस मौके पर मौसूफ ने कई सब्जियों की पनीरी श्रीनगर जिले और मुल्क के इलाकों के काश्तकारों में तकसीम की। उन्होंने कहा कि महकमा दीगर सब्जियों के साथ साथ कश्मीरी लाल मिर्च की मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अहिया और फरोग के लिए काम कर रहा है। बागबानी महकमे के डायरेक्टर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने आज पुलवामा जिले के लदो पांपुर इलाके में हाई डेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर किसानों के एक वफ्द ने उनके साथ मुलाकात की और मुख्तलिफ मामलात और मुतालबात उनके सामने रखे। मौसूफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि सभी जायज मुतालबात को मरहलवार बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बागबानी शोबे से जुड़े काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए रिवायती बागबानी के बजाय हाई डेंसिटी बागात की तरफ तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 40 करोड़ 82 लाख से ज्यादा कर्जे की मंजूरी दी जा चुकी है। कुल कर्जों का 21% नए छोटे कारोबारियों के लिए मंजूर किया गया। इस स्कीम का आगाज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस मकसद से किया था कि गैर कॉरपोरेट इदारों, गैर ज़रूरी छोटे और बहुत छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक का बिला जमानत बगैर सूद वाला कर्जा दिया जा सके ताकि वो अपनी आमदनी से मुतालिक सरगर्मियां अंजाम दे सकें। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्कीम से बहुत छोटे कारोबारियों के लिए कर्जों को आसान बनाया गया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।